Hello all GATE CS aspirants. I am Amit Goel. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. In the previous, almost 17 sessions, we have covered almost, 4 phases of compiler. I should say 3 phases of compiler. All right. In this session, we are starting with another phase of the compiler, which is known as intermediate code generation. When I said the 3 phases of compiler which we have covered, they are lexical analysis phase, syntax analysis phase, and then we covered also the semantic analysis phase. In this lecture, we are starting with the next phase, which is known as the intermediate code generation phase, and we will see the representation of ICG in this session, right? So let's see. If we talk about, the front end of the compiler, this is the last phase of the front end of the compiler. This is the last phase, which is machine independent phase. The next 2 phases will be machine dependent phases. All right. So let's see, guys. The phases of the compiler a bit. Once again, we will have a close look at the various phases. And if we see, we have already covered lexical analysis. We have already covered something known as lexical analysis. We have covered syntax analysis. We took some 2 sessions here, almost 13 sessions over here, then some 2 sessions on semantic analysis. All right, now we are starting with 2 sessions on intermediate code generation and 1 on code optimization. Target code generation, the questions are, we do not find any questions which will ask you to directly generate assembly code. If there are some questions, they will be mostly related with the computer architecture and organization subject, as we have already discussed. Okay. All right. So let's go and start with the intermediate code generation phase in detail. Let's start with the intermediate code generation phase in detail. All right. So in the intermediate code generation, what do? We get in general in the intermediate code generation, what do we have is basically the semantically verified parse tree we get, and after this we will get the intermediate code. Now, what types of intermediate code representations are there? We have textual representation as well as graphical representation. In the textual representation, we have 3 address code and postfix notation. In the graphical notation, we have abstract syntax tree as well as the directed acyclic graph. ठीक है, क्या है ये, कैसे है, ये हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्योंकि उससे ही अच्छा समझ में आएगा. हम एग्जाम्पल लेते जाएंगे हर एक टाइप का, और जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से हमें आगे की चीजें करनी है. ठीक है, आइए देखते हैं. बात करें राइट द 3 एड्रेस कोड फॉर a प्लस बी ए क्रॉस a प्लस बी प्लस c प्लस d. तो पहली बात तो हमें 3 एड्रेस कोड लिखना है. क्या हमें पहले प्रायोरिटीज के बारे में पता है? सबसे पहले तो ब्रैकेट्स ही होती हैं. पहले ये कैलकुलेट होगा, फिर ये और फिर ये, एंड देन उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, बिकॉज प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई का ज्यादा है. कैसे पता? हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही बेसिस मान के ही सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं. तो ये रहे हमारे कैलकुलेशंस. तो सबसे पहले 3 एड्रेस कोड होता क्या है? यहां पर एट मैक्स 3 एड्रेसेस आर अलाउड. 3 से ज्यादा एड्रेस आप किसी भी इंस्ट्रक्शन में नहीं लिख सकते. ठीक है, 3 एड्रेसेस आर अलाउड. तो ठीक है, लिखते हैं इसको. मान लीजिए मेरे को पहले ये कैलकुलेट करना है, तो मैं लिख दूंगा t1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी. फिर मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो मैं लिख दूंगा t2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी. फिर मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वो भी कर सकता हूं, दैट इज t3 इज इक्वल्स टू. इनफैक्ट मैं ऐसा भी कर सकता हूं, c प्लस डी पहले कैलकुलेट कर लूं, कर लिया, फिर उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं. तो मैं मल्टीप्लीकेशन करने गया, तो मैंने क्या किया? t4 इज इक्वल्स टू t1 इंटू t2 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं. t4 का और t2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, t1 और t2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ. तो अब उसके बाद एडिशन बाकी है, तो t5 इज नथिंग बट t4 प्लस t3 हम लोगों को मिल जाता है. All right, t4 plus t3 definitely that is what is our answer. ये हमारा 3 एड्रेस कोड है, जहां पर हमने एट मैक्स 3 एड्रेसेस यूज किए. और 3 एड्रेस कोड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अच्छा रिप्रेजेंटेशन है? क्योंकि हमारे पास रजिस्टर्स के बेसिस पे इसको हैंडल करना बहुत इजी है. यू विल रिक्वायर एट मैक्स 2 रजिस्टर्स एट ए टाइम टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन.
or at max 3 in case you want to store the result somewhere else, otherwise 2 registers are more than enough to store anything. ठीक है, 2 or 3 maximum 3 registers are required. ठीक है, तो यही बेसिकली यूसेज है जिसकी वजह से हम 3 एड्रेस कोड को प्रेफर करते हैं. और इन जनरल जितने भी नोटेशंस हमने डिस्कस करे, 3 एड्रेस कोड नोटेशन और यू नो the abstract syntax tree notation, or what we have the postfix notation, or we also have the directed acyclic graph notation. Among all these notations, the most popular is the 3 address code notation. ठीक है, तो ये इस तरह से हम 3 एड्रेस कोड लिखते हैं. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हम आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं राइट द पोस्टफिक्स नोटेशन फॉर a प्लस बी क्रॉस a प्लस बी प्लस c प्लस d. इसका हमें पोस्टफिक्स नोटेशन लिखना है. सेम एक्सप्रेशन है, आपको पोस्टफिक्स लिखना है. पोस्टफिक्स कैसे लिखेंगे? पहले इस ए बी को कैलकुलेट करते हैं, ए बी प्लस, फिर इस ए बी को कैलकुलेट करना है तो ए बी प्लस, फिर इस सी प्लस डी को कैलकुलेट करना है तो सी डी प्लस, राइट. बट हमें मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन पहले करना है. कैसे करना है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन हैज हायर प्रायोरिटी. तो हम क्या करेंगे? ए बी प्लस के बाद लिख देंगे मल्टीप्लाई, और देन सी प्लस डी हमने कैलकुलेट कर दिया, इसके अंदर सारा प्लस करना है तो सी डी प्लस प्लस कर दिया. ऐसा हम कर सकते हैं. अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा? पहले ए प्लस बी कैलकुलेट हो जाएगा, फिर ये वाला ए प्लस बी कैलकुलेट हो जाएगा, फिर हमारे पास में बीच में इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, फिर हमारे पास में सी प्लस डी आ जाएगा, फिर इन सब का एडिशन सी प्लस डी से हो जाएगा. तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था. आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. पोस्टफिक्स नोटेशंस वैसे हम इन द कोर्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स भी बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं. ठीक है, वहां से भी आप इसे रेफर कर सकते हैं. यहां पे मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कैसे पोस्टफिक्स नोटेशन का पूरा एल्गोरिथम मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं. वो आप इन द सब्जेक्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं. देयर इज नो पॉइंट इन रीडिस्कसिंग दैट हियर. ठीक है, आगे बात करते हैं. पोस्टफिक्स नोटेशन में एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाना. अभी हम बना के आए हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री इन द सिमेंटिक एनालिसिस फेज. लुक एट द लेक्चर नंबर 17. अभी हम इसका डायरेक्टली बनाएंगे. हमारे पास ए है, बी है और हम प्लस करना चाहते हैं. फिर हमारे पास में ए है, बी है, प्लस करना चाहते हैं. फिर हम इन दोनों एंटिटीज को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं. फिर हमारे पास में सी है, डी है, हम इसको प्लस करना चाहते हैं. और फिर इन दोनों चीजों को फिर से हम प्लस करना चाहते हैं. ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री. एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में रूट पे हमेशा क्या रहेंगे? ऑपरेटर्स रहेंगे. और ऑपरेंड्स जो है हमारे पास में लीव्स पे रहेंगे. दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री. ठीक है, सिंपल है. आगे बढ़ते हैं. एक और जो नोटेशन जो कि कॉमन है, द डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ नोटेशन, दैट इज डैग नोटेशन, जो कि कॉमन है काफी. अब आते हैं हमारे पास डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ वाली नोटेशन. इसमें हम क्या करते हैं? हम सिंप्लीफाइड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाना चाहते हैं. अगर एक वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो हम उसे बार बार कैलकुलेट नहीं करते हैं. उससे वो क्या बन जाती है? डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ. उसमें कैलकुलेशंस कैसे होंगी वो देखते हैं जरा. हमारे पास ए है, बी है, हमने क्या कर दिया? प्लस. फिर उसके बाद दोबारा से ए प्लस बी को कैलकुलेट करना है. उसके बाद हमें दोबारा से ए प्लस बी को कैलकुलेट करना है और फिर हमें मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो हमें a प्लस बी को दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. हम मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे? हम मल्टीप्लीकेशन में इसी वैल्यू को 2 बार यूज कर लेंगे. हो गया हमारा काम. तो कोई यहां पर डायरेक्टेड ग्राफ्स है और ए साइक्लिक है, इसमें देयर विल नॉट बी एनी साइकिल, यू विल नॉट बी टर्निंग बैक टू मेक अ साइकिल. आपकी वैल्यूज ऊपर ही फ्लो कर रही हैं. ठीक है, बॉटम अप. देन बात करते हैं सी प्लस डी को. तो सिंपल है, ये तो सी है और ये डी है. आपने बीच में प्लस लगा दिया, सी प्लस डी बन गया. अब इन दोनों को प्लस करना है तो आप ऊपर प्लस कर दीजिए. बस एक ही चीज का चेंज है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में कि आपके जो वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट है आप उसको रिकैलकुलेट नहीं करेंगे. आप उसके रूट को डायरेक्टली जहां यूसेज है वहां पिकअप कर लेंगे. जैसे कि a प्लस बी को 2 बार कैलकुलेट नहीं किया गया, हमने मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे इसी को कैप्चर करके आगे यूज कर लिया. ठीक है, दिस इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट द पोस्ट व्हाट डू वी से इज द डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ नोटेशन. ठीक है, नोन एज द डैग नोटेशन. सिंपल है. आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. हमने जब जैसे कि बताया हमारे पास में 4 रिप्रेजेंटेशंस थे. कौन कौन से रिप्रेजेंटेशंस थे बताएं जरा एक बार. हमने 4 रिप्रेजेंटेशंस देख लिए हैं. पहला रिप्रेजेंटेशन देखा था हम लोगों ने 3 एड्रेस कोड. फिर उसके बाद हमने देखा कौन सा नोटेशन? पोस्टफिक्स नोटेशन. फिर उसके बाद हमने कौन सा नोटेशन देखा?
3 एड्रेस कोड भी ठीक है, पोस्टफिक्स नोटेशन भी ठीक है। उसके बाद 2 हमने ग्राफिकल, ये तो थे हमारे टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशंस। फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में 2 नोटेशंस देखे, कौन कौन से देखे भाई? सबसे पहला नोटेशन जो हमने देखा ग्राफिकल के अंदर वो कौन सा था? सबसे पहले हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, और देन उसके बाद हमने देखा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इन सब में से सबसे ज्यादा पॉपुलर नोटेशन कौन सा है? वो है 3 एड्रेस कोड नोटेशन। सबसे पॉपुलर नोटेशन कौन सा है? 3 एड्रेस कोड नोटेशन है। तो आइए जरा हम ये देखें कि 3 एड्रेस कोड को रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कंप्यूटर के अंदर, कैसे हम 3 एड्रेस कोड को कंप्यूटर डिवाइस में सेव करते हैं, वो अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये है हमारा 3 एड्रेस कोड नोटेशन। पहले तो हम इस जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका 3 एड्रेस कोड लिख लेते हैं। इसके लिए T1 इज इक्वल्स टू A प्लस बी, देन आ जाता है T2 इज इक्वल्स टू C प्लस डी, देन आ जाता है X इज इक्वल्स टू T1 क्रॉस T2। ठीक बात है, लिख सकता हूं, पहले प्लस कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास में 3 एड्रेस कोड रेडी है। 3 ही लाइन का 3 एड्रेस कोड बन रहा है। अब मुझे उसके लिए क्वाड्रपल, ट्रिपल और इनडायरेक्ट ट्रिपल फॉर्म्स लिखने हैं। मैं तीनों फॉर्म्स लिखूंगा, उनके एडवांटेजेस बताऊंगा, डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। अगेन ये नहीं बोला जा सकता कौन सा फॉर्म बेस्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं किस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आ रही है बात समझ में? बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड से फैक्ट्स हैं जिनके हमें डिस्कस करते जा रहे हैं। क्वाड्रपल फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक 4 टपल की फॉर्म में से सेव करेंगे। अगर आप देखें किसी भी 3 एड्रेस कोड को, अगर मैं ये बोल रहा हूं मैक्सिमम 3, उसके अंदर ऑपरेंड्स आ सकते हैं, तो ऑपरेटर कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 1। तो कितनी चीजें स्टोर करनी है मेरे को? 4 चीजें स्टोर करनी है। तो क्यों ना हम उन्हें स्टोर कर लें। जैसे कि हमें यहां पर अगर मैं ऐसे स्टोर कर लूं T1 प्लस A एंड B, मतलब आपको 2 ऑपरेंड्स यहां है, ऑपरेटर यहां है, रिजल्ट यहां जाएगा। ऑपरेंड्स, ऑपरेटर एंड रिजल्ट। क्या मैं ऐसे सेव कर सकता हूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से आगे भी लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। T2 प्लस CD, देन उसके बाद X मल्टीप्लाइड बाय T1 एंड T2। तो ये हो गया मेरा क्वाड्रपल फॉर्म। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है भी तो आप पोस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इसमें हम पाइपलाइनिंग कर सकते हैं, सब कुछ अलग अलग है, उससे हमारी परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? स्पेस हमारा बहुत वेस्ट हो जाएगा। 4 चीजें सेव कर रहे हैं, हमारा स्पेस इज गेटिंग वेस्टेड। ऑलराइट, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात करते हैं ट्रिपल्स के बारे में। जब हम बोलते हैं ट्रिपल, तो ट्रिपल में 4 चीजें यहां थी, क्वाड्रपल में, ट्रिपल में 3 चीजें होंगी। कौन सी चीज को निकाल सकते हैं? कहां पर हमारा रिजल्ट जाएगा? T1 को निकाल के हम इंस्ट्रक्शन के नंबर को मान लेंगे कि वो है उसका रिजल्ट। तो जैसे कि मैं यहां पर सेव करूंगा इंस्ट्रक्शन नंबर 1 प्लस AB, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 प्लस CD, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 क्रॉस T1 T2। मेरे को रिजल्ट कहां स्टोर हुआ? जस्ट अ सेकेंड, वो मैं इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे याद रखूंगा। तो यहां पर जैसे A प्लस बी का रिजल्ट 1 इंस्ट्रक्शन है, C प्लस डी का रिजल्ट 2 इंस्ट्रक्शन है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 1 और 2 के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 में स्टोर कर दूंगा। तो ये जो नंबर्स हैं 1 2 3, ये स्टोर नहीं करने, ये हमारे इंस्ट्रक्शन का नंबर है। तो अब ये हुआ, हमें ये वाली चीज को स्टोर नहीं करना पड़ा, अब मेरे को ओवरऑल 3 ही चीजें स्टोर करनी पड़ी। देयरफॉर दिस इज नोन एज द ट्रिपल फॉर्म। आ रही है बात समझ में? ये ट्रिपल फॉर्म बन गया। अब अगर मैं बात करूं इसके एडवांटेज की, तो फायदा क्या हुआ? हमारी स्पेस जो है बच गई, स्पेसलेस। बट अगर डिसएडवांटेज की बात करूं, तो अब आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस विल रिड्यूस, क्योंकि अब पाइपलाइनिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती पाइपलाइन? अरे भाई, आपने 1 2 3 करके इंस्ट्रक्शंस को नंबर कर दिया, अब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। देयर कैन नॉट बी एनी पाइपलाइन। आप पैरेलली कुछ भी नहीं चला सकते। ठीक है, पाइपलाइन से ज्यादा बेटर वर्ड आई शुड से, आप पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। हर इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को चलना पड़ेगा। तो पाइपलाइनिंग और द पैरेलल प्रोग्रामिंग इज नॉट पॉसिबल, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है हमारी रिड्यूस हो जाती है। अब एक लास्ट फॉर्म जो कि इनडायरेक्ट ट्रबल है, जो इसके दोनों डिसएडवांटेजेस को हैंडल करती है, जो कि बोलती है कि आप जो है
एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन से ये बातें करें। मतलब कि यहां तो क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 2 3 4 ऐसा चल रहा था, आप एड्रेस से बात करें। मान लीजिए 100 एड्रेस पे लिखा हुआ है प्लस ए बी, 100 एंड लेट्स से 200 एड्रेस पे हमने लिख दिया प्लस सी डी, और फिर 300 एड्रेस पे हमने लिख दिया मल्टीप्लाइड 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 100 एंड 200। अब क्या हो गया कि स्पेस तो वही सेव हो रहा है, एडवांटेज वही है, स्पेस वाला जो है स्पेस इज लेस, प्लस साथ ही साथ में एक और एडवांटेज जो है, जो हमारा परफॉर्मेंस था वो भी सही रहेगा। परफॉर्मेंस में भी कोई इशू नहीं है। कारण क्या है, क्यों है परफॉर्मेंस सही, यहां पर खराब क्यों नहीं हुई? यहां पे हमने इंस्ट्रक्शन के एड्रेस से बात कर रहे हैं, यहां तो स्टेप नंबर डिस्कस कर रहे हैं। स्टेप नंबर से तो दिक्कत है भाई, पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, पाइपलाइनिंग नहीं कर सकते, लेकिन एड्रेस है, एड्रेस हर इंस्ट्रक्शन का इंडिपेंडेंट है। आप एड्रेस के हिसाब से तो पैरेलल प्रोग्रामिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल पाइपलाइनिंग कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जो है स्पेस इज लेस, यहां पर परफॉर्मेंस जो है अच्छा है। और अब मैं ये कह सकता हूं स्पेस लेस है, परफॉर्मेंस ज्यादा है, तो फाइनली यहां पर फिर भी एक डिसएडवांटेज आता है। क्या है वो डिसएडवांटेज? आपको मल्टीपल मेमोरी एक्सेसेस करने पड़ेंगे, मल्टीपल मेमोरी एक्सेसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन एवेलुएट करनी है, आपको एड्रेस नंबर 100 के ऊपर जाना पड़ेगा, वहां से वैल्यू उठानी पड़ेगी, एड्रेस नंबर 200 पे जाना पड़ेगा, वहां से वैल्यू उठानी पड़ेगी। तो मल्टीपल मेमोरी एक्सेसेस हो गए, एक मेमोरी एक्सेस से आपका काम नहीं बना। ठीक है, तो यहां पर इस वजह से मल्टीपल मेमोरी एक्सेसेस हो जाते हैं। ओवरऑल हमारे पास में 3 बेसिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, क्वाड्रपल, ट्रिपल एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल। इसके अलावा जो है एज फार एज 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशंस आर कंसर्न, द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन रिप्रेजेंटेशंस आर कंसर्न, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जो सवाल आएंगे, अगर आपको इतनी डिटेल्स पता है, आप हर तरीके का सवाल बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली ये थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आपको है तो बहुत बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अगेन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 एड्रेस फेज जो है, वो 3 एड्रेस जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो फेज है, वो एक अकेला, वो हमारा अकेला नहीं, लास्ट फेज है जो कि फ्रंट एंड है, हमारा लास्ट फेज है जो कि मशीन इंडिपेंडेंट फेज है। ये इसका फायदा क्या है कि इस लेवल पे भी हम किसी भी कोड को किसी भी मशीन पे लेके जा सकते हैं, उसके बाद मशीन डिपेंडेंट फेजेस हमारे शुरू हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में? बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। अब this was all about this session, guys. What we have seen in this session is the representation of ICG in the intermediate code generation. हमने इस सेशन में क्या क्या देखा? हमने देखा कि इंटरमीडिएट कोड को लिखने के 4 बेसिक मेथड्स हैं, 2 उसमें से ग्राफिकल हैं, 2 टेक्सचुअल हैं। ग्राफिकल की बात करें तो हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट इंडस्ट्री और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ आता है। टेक्सचुअल की बात करें तो हमारे पास में पोस्टफिक्स नोटेशन और 3 एड्रेस कोड आता है। 3 एड्रेस कोड इज द मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, तो हमने इसका रिप्रेजेंटेशन समझा, मशीन के अंदर इसे कैसे लिखते हैं। 3 तरीके हैं हमारे पास में, हम क्वाड्रपल फॉर्म में लिख सकते हैं, हम ट्रिपल फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इनडायरेक्ट ट्रिपल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वाड्रपल फॉर्म में एज ए टपल ऑफ 4 एंटिटी सेव करेंगे, 2 ऑपरेटर्स, 2 ऑपरेंड्स, 1 ऑपरेटर, और फाइनली हमारे पास में क्या रहेगा, 2 ऑपरेंड्स, 1 ऑपरेटर, और फाइनली क्या है हमारे पास, फाइनली जो डेस्टिनेशन है वो लिखते हैं। देन उसके बाद ट्रिपल के अंदर हम 3 ही चीजें लिखते हैं, हम डेस्टिनेशन नहीं लिखते, इंस्ट्रक्शन के स्टेप नंबर से हमें पता लगता है। एंड देन फाइनली हमने इनडायरेक्ट ट्रिपल देखा, जिसके अंदर हमें इंस्ट्रक्शन के स्टेप से नहीं, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस से पता लगता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन दिस सेशन, और हमने देखा सभी के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। इनडायरेक्ट ट्रिपल में जो इसके प्रोन्स थे, जो कोन्स थे, वो हमने प्रोज में कन्वर्ट किए, बाकी दोनों के जो कोन्स थे उन्हें प्रोज में कन्वर्ट किया, लेकिन उसका फिर से एक और कोन आ गया, दैट इज उसमें मल्टीपल मेमोरी एक्सेसेस चाहिए। तो अगेन कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ये बोल पाना मुश्किल होगा, इट विल डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन इन योर सिनेरियो, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड। ऑलराइट गाइज, so this is all about this session, guys. What I will see you guys in the next session with some details on back patching, which also comes under intermediate code generation. All right, so and then we have one more session on machine independent and independent optimizations under quad optimizations, right? So I will see you guys in the next session, guys. Thank you so much.